Good morning, students. The topic that we are going to see today is fixed and working capital. And in that we are going to study about only management of fixed capital. Now, before understanding what do you know by fixed capital or what is working capital, first we need to understand why the requirement for fixed capital or working capital arises in the organization. As we all know, the firm requires to make investment in two types of asset. The very first asset is the fixed asset and second is the current asset. Fixed asset are those assets which are the resources of the firm or which are owned by the firm for relatively longer period of time, more than a year. For example, requirement of land and building, plant and machinery, furnitures and so on. Similarly, current assets are those assets which are required by the firm to maintain the liquidity level of the business. That is cash and cash equivalents, marketable securities, your trade receivables, all this comes under your current assets. So each and every business organization have to maintain investment into fixed assets and current assets. So now what do you understand by fixed capital and working capital? When a firm makes investment into fixed asset, that is purchasing of land and building, furniture for relatively longer period of time, or so this financing of fixed asset is known as your fixed capital. Similarly, when the firm makes investment into maintaining of current asset, it is termed as working capital. So today we are going to study only about management of fixed capital. Now, why it is necessary for the firm to manage the fixed capital? The reason is, now first of all, as we have already seen, fixed capital is what? It is investment into long term asset. Now this management of fixed capital, it will involve allocation of firm's capital to different projects. यानी different projects firm के सामने available है. फर्म के पास जितना भी कैपिटल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आप ये परचेस करने में देने वाले हो, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो. सिंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इज टू बी एलोकेटेड फॉर मेंटेनिंग ऑफ द फिक्स एसेट, द डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू टेक केयर, द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू टेक केयर whenever any fixed capital decision is to be taken. Now, since it is involving investing into long-term asset, it is also termed as investing decision or it is also termed as capital budgeting decision. One of the important point that should be noted over here is whenever you want to finance your fixed capital or your fixed asset, whenever you want to invest into fixed asset, it is always to be done with the help of long-term source of capital only. That is through issue of equity shares, preference shares, or with the help of retained earning maintained into the organization. Short-term sources should never be used in order to finance your long-term requirement. Why it is so? Because the fund is going to be blocked for relatively longer period of time, for more than a year. So always long-term sources are only resorted to. So why this management is important? This is important because of four main reasons. Long-term growth. Now why you are going to invest into your fixed capital? It is meant for growth. आपको अगर आप लग रहा है कि फ्यूचर में आपका अगर यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, नो डाउट उसका रिटर्न अभी आपको नहीं मिलेगा. उसका रिटर्न आपको कब मिलेगा? कुछ सालों के बाद ही मिलने वाला है. ठीक है, कभी भी आप कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, सिंपल एग्जांपल जैसे आप सपोज कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किस हिसाब से करते हो कि फ्यूचर में 4 साल के बाद या 2 साल के बाद या 5 साल के बाद एक आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है. ठीक है, सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन क्यों लेती है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए? क्योंकि इसका फल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सालों के बाद मिलेगा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? बिकॉज जो भी डिसीजन आप ले रहे हो वो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले रहे हो, ना कि शॉर्ट टर्म. बिकॉज जो भी ग्रोथ आपको होने वाला है, अभी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप इन्वेस्ट करोगे, लेकिन उसका फायदा आपको थोड़े सालों के बाद ही होने वाला है. सो लॉन्ग टर्म ग्रोथ. Similarly, since you are going to invest for long term period, the amount involved will be also more. So here large amount of fund is involved while financing your long term or fixed capital. ठीक है, देन जैसे लार्ज अमाउंट की जरूरत है वैसे साथ साथ उसमें जो रिस्क होगा वो भी ज्यादा होगा. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक योर दिस कैपिटल बजटिंग डिसीजन या फिक्स कैपिटल डिसीजन आप लोगे तो आपको रिस्क फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ेगा. और केयरफुल या डिटेल एनालिसिस आपको सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट आपके सामने है उसके लिए आपको डिटेल एनालिसिस विल हैव टू बी डन. बिकॉज एक गलत डिसीजन और आपका वो पूरे का पूरा फंड डूब जाएगा. जो जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वो पूरे का पूरा पैसा डूब जाएगा. सो रिस्क तो रहेगा, इसलिए डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा. बिकॉज इट इज गोइंग टू अफेक्ट दी ओवरऑल बिजनेस रिस्क आपका अफेक्ट करने वाला है. एंड एट द सेम टाइम इट इज इरिवर्सिबल डिसीजन. एक बार आपने पैसा डाल दिया किसी प्रोजेक्ट में तो आप कभी भी बीच में वो प्रोजेक्ट को विड्रॉ नहीं कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज ह्यूज अमाउंट इज बीन इन्वॉल्व, ह्यूज टाइम हैज बीन इन्वॉल्व इनटू इट, सो इट इज अ इरिवर्सिबल डिसीजन.
So why management of fixed capital is required? Management of fixed capital is required because of 4 reasons. सबसे पहले because the decision is for long term growth which is meant for the future prospect. Large amount is involved into this. Capital का बहुत बड़ा हिस्सा आप डालने वाले हो, कंट्रीब्यूट करने वाले हो या इन्वेस्ट करने वाले हो. जितना ज्यादा अमाउंट डालोगे, जितना ज्यादा टाइम के लिए डालोगे, उतना ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होगा. और एक बार आपने ये डिसीजन ले लिया, आप उसको वापस विड्रॉ नहीं कर सकते हो. So before taking decision related to fixed capital, certain factors are to be taken into consideration. Which are those factors? The very first factor is nature of business. कौन से type of business में आप पैसा डालने वाले हो, that plays a very important role. That is, the requirement of fixed capital will be very less in a trading concern as compared to that of large manufacturing units. अगर आपका कोई लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें आपका पैसे का रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ जिसका सिर्फ ट्रेडिंग का काम है. सिमिलरली स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आप लार्जर वॉल्यूम में प्रोडक्शन करने वाले हो, ठीक है, यानी आपको बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी, बहुत सारे मशीनरीज की जरूरत होगी, ठीक है, तो उसके लिए आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी ऑल्सो मोर. सिमिलरली इफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज वेरी लेस, देन द कैपिटल फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस. Choice of technique. Now two techniques are available before the organization. The very first is capital intensive technique and second is the labor intensive technique. As the name itself suggests, labor intensive मतलब क्या है? You are totally dependent upon the manpower. The use of machine is very less or no use of machine. So इस केस में आपको फिक्स कैपिटल या फिक्स एसेट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी. So फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस. Whereas अगर हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की बात करें, so here the requirement of manpower will be less, but the requirement of more and more machineries will be there. तो यानी आपको बहुत ज्यादा फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. So here the fixed capital requirement will be also more. The next is technology upgradation. Now suppose if you are into IT sector, ठीक है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी keeps on changing. एक बार आपने जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की वो सेम तो रहती नहीं है कभी भी. यू नीड टू चेंज इट ऑल. जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी है, पहले ERP सिस्टम आया, अब SAP सिस्टम आया, ठीक है. सो टेक्नोलॉजी आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा. तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में यू आर टोटली और हेवीली डिपेंडेंट अपॉन द टेक्नोलॉजी, द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल विल बी ऑल्सो वेरी मोर. सो हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स. जैसे कंप्यूटर्स अगर आपके अब्सोल्यूट हो गए तो आपको चेंज करते रहना पड़ेगा, रिप्लेस करते रहना पड़ेगा. सो द ऑर्गेनाइजेशन विच मेकिंग यूज जो ऑब्सोलेंस हो सकता है, उसमें योर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी ऑल्सो वेरी much more. Growth prospects. Again, whenever the firm sees कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी ऑल्सो मोर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो और फ्यूचर में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, तो वेनेवर डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज, आपको सप्लाई मैच करनी पड़ेगी प्रोडक्ट का. इसका मतलब आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा. प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट ऑफ योर जो मशीनरीज होगी वो भी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी. सो योर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर वेनेवर एनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल बिफोर दी फॉर्म. देन डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, व्हेन दी कंपनी इज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट लाइन. जैसे सिंपल एग्जांपल रिलायंस का ले लो. इट इज इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन. इट इज इनटू पेट्रोलियम, इट इज इनटू कम्युनिकेशन सेक्टर, इट इज इनटू FMCG. सारे सेक्टर्स में वो है. So whenever the company is going for diversification, the requirement of fixed capital will be more because हर एक अपना इंडस्ट्री का अपना अपना अलग अलग डिमांड होता है. So accordingly the fixed capital requirement will also differ. Then comes your financing alternative. Financing alternative मतलब क्या है, there is one of the option that is available before the organization, that is lease financing. Lease financing का मतलब क्या है कि सपोज आपको कोई फिक्स एसेट है, उसको खरीदना ना पड़े, उसको आप लीज पे ले लेते हो और लीज जितने सालों के लिए आपने उसको लीज पे लिया है, आपको सिर्फ नॉमिनल रेंट भर के आप वो फिक्स एसेट को यूज कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल कोई लैंड है, ठीक है, आपको वो लैंड खरीदना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उस लैंड को लीज पे ले सकते हो, ठीक है. एंड फॉर 10 years या 12 years या 15 years या 20 years जो भी आपका लीज अग्रीमेंट में होगा, दैट विल बी स्पेसिफाइड. तो आप वो लैंड को यूज करने लग जाओगे और उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, नॉमिनल जो भी रेंट होगा वो लीज रेंट आपको लेसर को पे करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन. सो वेनेवर एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग यूज ऑफ दिस लीज फाइनेंसिंग, तो उनको फिक्स एसेट में ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो फॉर दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल विल बी ऑल्सो वेरी लेस. बट द इंडस्ट्रीज विच आर नॉट इनटू हायर परचेस या लीज फाइनेंसिंग में अगर वो नहीं जाता है, they are just going into total purchase of the fixed asset, then for them the requirement of fixed capital will be also more. And last, that is level of collaboration.
कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, जैसे जॉइंट वेंचर का नाम आपने सुना होगा, व्हेन टू कंपनीज और टू इंडस्ट्रीज जॉइन देयर हैंड्स, ठीक है, टू कि कोई भी काम है वो दोनों मिल बांट के करेंगे। जैसे आपके पास कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी ए के पास मैन पावर अच्छा है, कंपनी बी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम उनकी बहुत स्ट्रांग है, तो दोनों कोलैबोरेट करके किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे। एंड देन उनकी इसमें क्या होगा कि उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जाम्पल है एक बैंक, दो बैंक है, एक दूसरे बैंक, अगर दो बैंक कोलैबोरेट करे एटीएम फैसिलिटी के लिए, यानी वो एटीएम फैसिलिटी बैंक ए भी यूज कर सकता है, बैंक बी भी यूज कर सकता है, जबकि वो एटीएम बिलोंग किसको कर रहा है, इट इज बिलोंगिंग टू बैंक बी। तो इसमें फायदा क्या होगा, बैंक ए और बैंक बी अगर कोलैबोरेट करते हैं तो बैंक बी के पास ऑलरेडी एटीएम फैसिलिटी अवेलेबल है, एटीएम मशीन उनकी अवेलेबल है, तो जो बैंक उनकी एटीएम फैसिलिटी यूज कर रही है वो उनसे रेंट चार्ज कर सकती है। और बैंक ए को क्या फायदा होगा कि उनको अब एटीएम फैसिलिटी डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। सो व्हेनेवर पॉसिबल अगर कोलैबोरेशन होगा कंपनी में तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी ऑल्सो वेरी लेस। That's all for today. Tomorrow we'll see about the working capital requirement.